دربار کے قریب مین ہول میں ماں بیٹی کے گر کر جاں بحق ہونے کا یہ معاملہ ہے۔ ذرائع کمیٹی عہدیداران کے مطابق انکوائری کمیٹی نے رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی ہے۔ کئی روز بعد بھی ایکشن نہ ہو سکا۔ رپورٹ میں ٹیپا باسا پارکنگ کمپنی نیسپاک پولیس دیگر کی غفلت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری احمد رضا سرور کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو رپورٹ پیش کر دی ہے اور ایکشن وہیں سے ہوگا۔ مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف حسن رضا سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، داتا دربار کے قریب مین ہال میں ماں بچی کے گرنے کے معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی تھی، اس کے بعد تحقیقات کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب احمد رضا سرور کی سربراہی میں جو ہے وہ کمیٹی قائم کی گئی تھی۔ انہوں نے رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو پیش کی اور لگ بھگ 3 ہفتے ہو چکے ہیں رپورٹ چیف منسٹر کے پاس ہے۔ ذرائع کمیٹی عہدیدار کا یہ بھی کہنا ہے کہ رپورٹ میں ہر پہلو سے معاملات کا جائزہ لینے کے بعد اور حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے رپورٹ میں پوائنٹس شامل کیے گئے ہیں، جس میں مانیٹرنگ اور انسپیکشن سسٹم کی کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور سسٹم رپورٹ چیف منسٹر کے پاس ہے۔ ذرائع کمیٹی عہدیدار کا یہ بھی کہنا ہے کہ رپورٹ میں ہر پہلو سے معاملات کا جائزہ لینے کے بعد اور حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے رپورٹ میں پوائنٹس شامل کیے گئے ہیں، جس میں مانیٹرنگ اور انسپیکشن سسٹم کی کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور سسٹم میں جو محکموں کا آپس میں فقدان ہے وہ شدید فقدان سامنے آیا ہے اور غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کا ہونا بھی جو ہے وہ حادثے کا باعث بنا اور پارکنگ کمپنی نے غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ایم ڈی لاہور پارکنگ کمپنی نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ایک طرف ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع ہوئی کہ معاملہ جو ہے وہ صلح صفائی کے ساتھ حل ہو چکے ہیں، لیکن کیونکہ ماں بچی کا مین ہال میں گرنا جو کہ سسٹم پر کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں، اس پر جو ہے ذمہ داروں کے تعین کر کے رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ ان کا یہ خیال ہے اور ان کی تجویز ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے حسن، آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ چونک کی رہائشی خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی اور گردہ نکالنے کا یہ واقعہ ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق سلیم نامی ملزم نوکری کا جھانسا دے کر راولپنڈی لے گیا، کوٹھی میں لے جا کر ملزمان نے زیادتی کی۔ ملزمان نے میرا گردہ نکال لیا اور 50,000 روپے دے دیے۔ تفتیشی افسر کے مطابق مقدمہ مدعی پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ مزید جانتے ہیں مدثر حسین سے۔ مدثر، مزید آگاہ کیجیے گا اس واقعے کے بارے میں۔ جی بالکل، چونکہ رہائشی خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی اور یہ گردے نکالنے کا واقعہ پیش آیا تھا، ملزمان نے خاتون کو نوکری کا جھانسا دے کر گردے نکالے اور اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ تھانہ چونک پولیس نے متاثرہ خاتون کی مدیریت میں مقدمہ جو ہے درج کر رکھا ہے۔ مقدمہ مدعی کا یہ کہنا ہے کہ سلیم نامی جو ہے وہ خاتون کو نوکری کا جھانسا دے کر پنڈی جو ہے وہ لے جایا گیا، وہاں ایک کوٹھی میں لے جا کر جو ہے وہ ملزمان نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ مقدمہ مدعی کا یہ موقف ہے کہ ملزمان نے میرے گردے نکال لیے اور 50,000 روپے دیے تاکہ میں جو ہے وہ تھانے میں جو ہے رپورٹ درج نہ کرواؤں۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ مفرور ہیں اور چھاپے مارے جا رہے ہیں، مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ملزمان کو تاحال پولیس گرفتار نہیں کر سکی ہے۔ تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ مقدمہ مدعی ثانیہ بی پولیس سے جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی، 12 اس کو فون کیے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ تھانے جو ہے وہ نہیں آئی۔ اس حوالے سے تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ جو ملزمان ہیں جلد ان کو گرفتار کیا جائے گا اور اس حوالے سے جو اصل حقائق ہیں وہ سامنے آئیں گے جب ملزمان گرفتار ہو جائیں گے کہ اس واقعے کے اصل حقائق کیا ہیں۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ قانونی تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جائیں گے اور مکمل چلان عدالت میں بھجوا کر ملزمان کو عدالت سے سزا دلوائی جائے گی۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ برائلر کی قیمت کم ہونے کے باوجود غریبوں کی پہنچ سے دور ہے۔ مرغی کا گوشت 14 روپے سستا فی کلو، قیمت 468 روپے ہو گئی ہے۔ مارکیٹ میں صافی گوشت 540 روپے فی کلو تک بکنے لگا ہے۔ زندہ برائلر ہول سیل 309 پر چون ریٹ 323 روپے کلو مقرر۔ مزید جانیں گے عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر بتائیے گا۔ جی بالکل، برائلر کی قیمت کے حوالے سے بات کی جائے تو برائلر جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ میں 540 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ یہ صافی برائلر گوشت کی قیمت ہے، جبکہ جو سرکاری ریلیز ہے اس میں برائلر کی قیمت 14 روپے کم کر کے 468 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ لیکن لوگوں کی قوت خرید جو ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے اس قدر سکڑ چکی ہوئی ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب بھی برائلر جو ہے ان کی قوت خرید سے باہر ہے، کیونکہ اگر بون لیس برائلر کی قیمت کے حوالے سے بات کی جائے تو بون لیس برائلر جو ہے وہ مارکیٹ میں 850 سے 900 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ونگز ہیں وہ 350 روپے فی کلو تک ہے۔ کلیجی پوٹا جو ہے وہ 250 روپے فی کلو تک ہے۔ گردنیں جو ہیں 300 350 روپے فی کلو تک بیچی جا رہی ہیں۔ مٹن اور بیف تو ویسے ہی جو ہے وہ لوگوں کی قوت خرید میں نہیں ہے۔ برائلر ہی تھا جو کہ بآسانی خریدا جا سکتا تھا، لیکن
बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों की क़ुव्वत ख़रीद को बुरी तरह मुतासर किया है। हमारे साथ एक ख़रीदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि मटन और बीफ तो सफ़ेद पोश भी नहीं ख़रीद सकता, ब्रायलर था, उसके मतलब क्या कहेंगे? ये भी कुफ्ते ख़रीद से बाहर हो गई है। इसकी कीमत होनी चाहिए 300 साढ़े 300 250 होनी चाहिए। रमज़ान में तो 250 होनी चाहिए कि हर आदमी रोज़ा इफ्तार करे, सहरी करे तो ठीक है, लेकिन महंगाई इतनी है कि ये तकरीबन 450 400 बिक रहा है, और जो साफ़ी है वो 550 है। बोनलेस तो आदमी ले नहीं सकता ना, वो 800 850 उसकी कीमत बनती है। और मीट की दुकान पे तो आदमी जा ही नहीं सकता, बीफ की दुकान पे नहीं जा सकता। इतनी महंगाई है कि आदमी सोच नहीं सकता। विंग्स है वो कुफ्ते हैं, कलेजी है वो 250 रुपये है, विंग्स 350 रुपये है। कोई आदमी, गरीब आदमी कोई चीज़ खरीद नहीं सकता। मैं किलो लेने आया हूँ तो मैं आधा किलो लेके जा रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि महंगाई जो है वो मुसलसल जो है बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो सुकड़ चुकी हुई है। ब्रायलर हो, बीफ हो या मटन, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में नहीं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि लाहौर में 5 स्ट्रक्चर प्लान रोड्स पर तामीराती सरगर्मियां जारी हैं। लागत में नुमाया इजाफा सामने आ गया। मजमूई लागत बढ़कर 13 अरब 56 करोड़ 83,51,888 रुपए तक पहुंच गई। लैंड एक्विजिशन रेट्स में इजाफे के बायस मंसूबों की मजमूई लागत में बड़ा इजाफा। इब्तदाई तखमीना तकरीबन 10 अरब रुपए था। मजीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। वक्त शहर लाहौर में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए LDA की तरफ से 5 स्ट्रक्चर प्लान रोड्स पर तामीराती सरगर्मियां जारी हैं। ताहम तहकीकात में इस अमर का इंकशाफ हुआ कि इन 5 नई बनने वाले सड़कों की लागत में खातर खा इजाफा सामने आया है। इब्तदाई तखमीना तकरीबन 10 अरब रुपए था, लेकिन अब मजमूई लागत बढ़कर 13 अरब 56 करोड़ 83,51,888 रुपए तक जा पहुंची है। लैंड एक्विजिशन रेट्स में इजाफे के बायस मंसूबे की मजमूई लागत में बड़ा इजाफा देखने में आया। दस्तावेजात के मुताबिक एक्सपो सेंटर से रिंग रोड फेज 1 स्ट्रक्चर प्लान रोड के लिए 3 अरब 3 करोड़ 74 लाख रुपए का तखमीना अब मुकर्रर कर दिया गया है। बल्ला चौक से डॉक्टर्स हॉस्पिटल स्ट्रक्चर प्लान रोड की लागत बढ़कर 1 अरब 75 करोड़ 93 लाख रुपए तक जा पहुंची है, जबकि शादेवाल रोड स्ट्रक्चर प्लान रोड 66 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल की जाएगी। नीलम रोड स्ट्रक्चर प्लान रोड, जिसको पाइन एवेन्यू के साथ मुंसलिक किया जाना है, उसकी लागत में भी इजाफा देखने में आया, और ये इजाफा 3 अरब 47 करोड़ 15 लाख 633 रुपए तक पहुंच चुका है। पांचों मंसूबों पर इस वक्त बैक वक्त काम जारी है और तामीराती काम भी बरक रफ्तारी से जारी है। DG LDA की तरफ से इन स्ट्रक्चर प्लान रोड की तमीर के लिए साल 2026 के इख्तिताम तक का जो हदफ है मुकर्रर किया गया है, और LDA की शोबा इंजीनियरिंग को ये हिदायत जारी की गई है कि पांचों स्ट्रक्चर प्लान रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि लाहौर में ट्रैफिक के दबाव पर काबू पाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुस्लिम लीग काफ, MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफाकी वज़रा की मुलाकात हुई है। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और दाखिली सलामती के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़रा को KP और बलोचिस्तान की सूरत हाल से भी आगाह किया। वज़रा में सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सदीकी और खालिद मकसी शामिल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़रा KP के और बलोचिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया है। वज़रा में सालिक हुसैन, खालिद मकबूल सदीकी और खालिद मकसी भी शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुस्लिम लीग काफ, MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफाकी वज़रा की मुलाकात हुई है। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और दाखिली सलामती के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है, और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़रा को KP और बलोचिस्तान की सूरत हाल से आगाह भी किया है। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का वहादत कॉलोनी रमज़ान बाज़ार का दौरा इंतजामात का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन की मुतल्लिका हुकाम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। ये रिपोर्ट देखें। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का वहादत कॉलोनी रमज़ान बाज़ार का दौरा इंतजामात का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन की मुतल्लिका हुकाम को फुल सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। अहम खबर के हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं, वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का वहादत कॉलोनी रमज़ान बाज़ार का दौरा इंतजामात का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन की मुतल्लिका हुकाम को फौरी सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है और उनकी जानिब से इंतजामात का जायज़ा लिया गया है। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने वहादत कॉलोनी रमज़ान बाज़ार का दौरा किया है और
सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन की मुतल्लिका हुकाम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का वहादत कॉलोनी रमज़ान बाजार का दौरा, मज़ीद दौरे का अहवाल जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। रमज़ान मुबारक माह मुक़द्दस में लोगों को जो अशियाए खुरोनोश हैं वो मुकर्रर करदा नरखों पर फ्राहम करने के लिए इस वक्त सूबाई कबीना के तमाम वज़रा की जो ड्यूटियाँ हैं वो मुख्तलिफ अजला में तफवीज़ की गई हैं और इन सूबाई वज़रा की तरफ से मुख्तलिफ रमज़ान बाज़ारों के जो दौरे हैं वो भी किए जा रहे हैं। इसी तनाजुर में सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने आज वहादत कॉलोनी रमज़ान बाजार का दौरा किया और इंतज़ामात का जायजा लिया, जबकि अशियाए खुरोनोश बिलखसूस आटा और चीनी के मेयार, कीमत और वजन के बारे में इस्तफसार भी किया। माह रमज़ान की बुनियादी ज़रूरियात जिसमें बेसन, खजूरें और सब्जी हैं, इनके स्टॉल्स का भी सूबाई वज़ीर ने खसूसी तौर पर जायजा लिया और सूबाई वज़ीर की मुतल्लिका हुकाम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई। वज़ीर हाउसिंग ने अपने इस दौरे के दौरान इमरजेंसी कैंप में आई बुजुर्ग खातून की खैरियत भी दरियाफ्त की और कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सिक्योरिटी, सफाई और कीमतों की निगरानी यकीनी बनाई जा रही है। एक ही छत तले अशियाए ज़रूरिया के सामान की मुनासिब नरखों पर फराहमी अवामी सहूलत है। आम मार्केट की निस्बत अशियाए खुरोनोश की कीमतों में वाज़ेह कमी ही हकीकी रिलीफ है। ठीक है ज़ैन, आपका बहुत शुक्रिया। सेशन अदालत में मुनिशात बरामदगी केस की समाअत पुलिस की नाकिस तफ्तीश के बाइस मुलजिम को बरी कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज असद हफीज ने मुलजिम हफीजुल्लाह खान को बरी किया है। मज़ीद जानते हैं अबू बकर दारिक से। जी अबू बकर। बिल्कुल, सेशन कोर्ट में मुनशियात बरामदगी केस पर समाअत हुई है जिसमें पुलिस की नाकिस तफ्तीश जो है उसके बायस मुलजिम को बरी कर दिया गया है। एडिशनल सेशन जज असद हफीज ने मुलजिम हफीजुल्लाह खान को बरी कर दिया है, जबकि मुलजिम से बरामद होने वाली मुनशियात का जो है वो रजिस्टर नंबर 19 में नहीं था और इसका इंदराज ना होने के बायस अदालत ने जो है ये प्रोसिक्यूशन ने ये कहा कि अदालत में ये चीज़ जो है वो नाकस है, जबकि अदालत ने जो है वो हाफिज मोहम्मद रजा एडवोकेट की निशानदेही पर मुलजिम को बरी किया, जिसमें उसने ये कहा कि जो प्रोसिक्यूशन है इसने इसका केस मजबूत नहीं है। ताहम मुलजिम ने जो है वो पुलिस ने मुलजिम को भारी मिकदार में मंशियात बरामद करके जो है वो गिरफ्तार किया था। उसके बाद अदालत में जो है वो केस मुकम्मल होने के बाद गवाहों और सबूतों के सामने अदालत ने ये फैसला किया जिसमें जो मुलजिम है उसको अदालत ने बरी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। यूनिसेफ पंजाब के सरबराह की LDA हेडक्वार्टर्स आमद वाइस चेयरमैन LDA मियां मरकूब और डायरेक्टर जनरल ताहिर फारूक से मुलाकात। LDA और यूनिसेफ का लाहौर चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने के अज़म का आदा, बच्चों की बेहतर नशोनुमा और जिस्मानी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने का फैसला। मज़ीद जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को पाकिस्तान का पहला चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने के अज़्म का इरादा किया है। इसी तनाजुर में यूनिसेफ पंजाब के हेड की LDA हेडक्वार्टर्स आमद हुई, जहां DC LDA मियां महबूब अहमद और DG LDA ताहिर फारूक से यूनिसेफ पंजाब के हेड ने मुलाकात की। LDA और यूनिसेफ ने लाहौर को चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने के अज़्म का इरादा किया। इजलास में समर कर गुफ्तगू की गई कि शहरी इलाकों में बच्चों की बेहतर नशोनुमा और जिस्मानी सरगर्मियों की सहूलियात को डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा बनाया जाएगा, जबकि चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने के लिए तजावीज़ का भी जायजा लिया गया। LDA की जानिब से बच्चों के लिए पार्क्स और खेलों की सहूलियात की फराहमी के इक़दामात को यूनिसेफ की जानिब से सराहा गया। यूनिसेफ पंजाब के हेड ने इस मौका पर कहा कि लाहौर में बैनुल-अक़वामी मेयार के तरक्याती काम देखकर खुशी हुई। उनका ताल्लुक अज़रबैजान से है, ताहम लाहौर इनके दिल के काफ़ी करीब है। इजलास में डायरेक्टर वाइस चेयरमैन सेल उबैद इकबाल और डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन आयशा मुताहर की तरफ से यूनिसेफ के वफ्द को ब्रीफिंग दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास नॉर्दर्न सर्कल की कारकर्दगी का जायजा लिया।
CEO की सैर इफ्तार के औकात में बिला तातुल बिजली फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। फील्ड अफसरान को पेशगी इंतजामात मुकम्मल रखने और निज़ाम के मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म भी दिया गया। आपको बता रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। नॉर्दर्न सर्कल की कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। CEO की सैर इफ्तार के औकात में बिला तातुल बिजली फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। फील्ड अफसरान को पेशगी इंतजामात मुकम्मल रखने और निज़ाम की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म दिया गया है। आपको बता रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया है। नॉर्दर्न सर्कल की कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। CEO की सैर व अफ्तार के औकात में बिला तातुल बिजली फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। फील्ड अफसरान की पेशगी इंतजामात मुकम्मल रखने और निज़ाम की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म भी दिया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर की CTOs और DTOs से वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि पहले सलाम और फिर कलाम के शौर को 100% यकीनी बनाएं। रमज़ानुल मुबारक में खदमत और इबादत के जज्बे से फ़राइज़ सर अंजाम दें। SSP ट्रैफिक पंजाब सैयद नदीम अब्बास ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। मज़ीद जाने के मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। आपको बता रहे हैं कि DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर की CTOs और DTOs से वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि पहले सलाम और फिर कलाम के शार को 100% यकीनी बनाएं। रमज़ानुल मुबारक में खिदमत और इबादत के जज्बे से फ़राइज़ सर अंजाम दें। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर ने CTO और DTO से जो है वीडियो लिंक जो है वो कॉन्फ्रेंस की है और SSP पंजाब की नदीम भी कॉन्फ्रेंस में जो है वो DG के साथ मौजूद थे। पहले सलाम और फिर कलाम के शौर को 100% यकीनी बनाने की जो है वो DG ट्रैफिक ने हिदायत जारी की। रमज़ान मुबारक में खिदमत और इबादत की जज्बे से फ़राइज़ सर अंजाम दें, ये DG ट्रैफिक ने हिदायत जारी की। DG ट्रैफिक का ये कहना है कि तमाम जो अफसरान हैं वो स्टाफ फील्ड में ज़्यादा वक्त गुजारें। साथ ही साथ में तमाम अफसरान फील्ड अफसरान के साथ इफ्तार करें। सड़क पर लाइन के नज़म ज़ब्त को जो है वो अफसरान यकीनी बनाएं। DG ट्रैफिक का मज़ीद कहना था कि बस और रिक्शा स्टाफ पर साइन बोर्ड आवेदा किए जाए। मुकर्रर स्टाफ पर बस और रिक्शा के खड़े होने की तादाद साइन बोर्ड पर जो है वो नुमाया की जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही जहां इबादत में इजाफा देखने में आता है, वहीं मुल्क भर में तस्बीह, टोपी और जाय नमाज की मांग भी बढ़ जाती है। लाहौर की मार्केटों में इन तीनों खरीदारों का रश है। शहरी कहते हैं रमज़ान में नई अशिया खरीदते हैं ताकि इबादत ऐसे तरीके से हो सके। रमज़ान आया तो इबादत में इजाफे के साथ साथ इबादत से मुंसलिक अशिया की मांग में भी इजाफा हो गया। लाहौर की मार्केटों में तस्बीह, टोपी और जाय नमाज के स्टॉल्स पर खरीदारों का रश। मुख्तलिफ डिजाइन और अकसाम की टोपियाँ और तस्बीहात फरोख्त के लिए मौजूद हैं। कपड़े और डिजाइन के हिसाब से चंद टोपियाँ 150 से 350 रुपए तक फरोख्त की जा रही हैं। कई टोपियों की कीमत 1000 से 1200 रुपए के दरमियान है। चमड़े की मखसूस टोपियों की कीमत 500 रुपए से 800 रुपए तक है। तस्बीहात की कीमत दाने की क्वालिटी के हिसाब से 300 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक है। जाय नमाज 800 रुपए से 3000 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। खरीदारी के लिए आए शहरियों का कहना था कि हर साल रमजान में नई तस्बीह और टोपी खरीदते हैं ताकि इस बाबरकत महीने का भरपूर फायदा उठा सकें। रमजान का महीना मैंने जुम्मे की नमाज पढ़ी थी तो टोपी खरीदी है, तस्बीह और टोपी खरीदी है। टोपियों की कीमत तो वही रहती है, लेकिन असल में इन रमज़ान में ज़्यादा यूज़ होती हैं। हम दीन के हर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हैं और टोपी भी लेते हैं, मसवाक भी लेते हैं। टोपी की जो कीमत जो है ना, यहाँ पर मैं अक्सर आता रहता हूँ तो महीने में एक दफ़ा मैं टोपी यहाँ से मैं ज़रूर ख़रीदता हूँ क्योंकि मुनासिब यहाँ के रेट होते हैं। होलसेल रेट में यहाँ से हमें चीज़ें मिलती हैं। इबादत से मुंसलिक अशिया फरोख्त करने वालों का कहना है कि रमज़ान में इनके कारोबार में भी बेहतरी आती है, ताहम इन मुकद्दस अशिया में मुनाफाखोरी नहीं कर सकते। कैमरामैन शहबाज के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रमज़ान के बाद दस्तरखान की चेकिंग की है। मियां मीर चिल्ड्रन अस्पताल और लिबर्टी चौक दस्तरखान में इंतजामात का जायजा लिया गया है। DG फूड अथॉरिटी ने 38 अफ्तार पॉइंट्स की चेकिंग की है। आसिम जावेद का कहना था कि रमज़ान निगहबान दस्तरखान में खुराक की तैयारी से तरसील तक कड़ी निगरानी की जा रही है। लाहौर समेत पंजाब की तमाम अजला में दस्तरखान इंतजामिया को फूड सेफ्टी ट्रेनिंग और स्क्रीनिंग की गई। तमाम फूड सेफ्टी इंतजामात बैनुल अक़वामी तर्ज के मुताबिक हैं। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर फूड
सेफ्टी टीमें 3 शिफ्टों में 24 घंटे मुतहरिक हैं। दूसरी जानिब फूड अथॉरिटी टीमों ने मारूफ स्वीट्स यूनिट को कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बंद कर दिया। सफाई के नाकिस इंतजामात पर मुतअद्दिद फूड पॉइंट्स को जुर्माने आए